and the Python. So first we study about the data science. What is the data science? The data science involves the advanced math techniques, statistic, and the big data, and it is helping you for the smart decision and the suggestion for the option based on the previous choice and making a robot to see the objects. Okay, so then the data scientist job. Okay, the data scientist is a sexiest job of a 21st century. So defining the sexiest job of the 21st century, the first one that is a considering the emergence of a data science, can outline the core competitiveness of a data scientist, then linking the data science and the big data, then understanding the role of the programming. Then in a we see about the data capture, analysis, and the presentation. Then we study about the ETL, that is the extract, transform, and loading. Then understanding the role of programming, you have also need other know about the several programming language in order to achieve a specific goal. Okay. Now, creating a data science pipeline. Okay. So, for creating a data science pipeline, first you have to do a preparing the data, then perform the exploratory data analysis, then learning from the data, then you have to do a visualizing, and lastly obtaining the insights and the data product. Means अगर आपको data science की pipeline देखते हो तो first the preparing the data, पहले prepare करना होगा, then exploratory of data analysis, then data analysis करना होगा, then you have to learning from that data, उस data पे आए, then visualizing, okay, to visualize करो, और lastly obtaining the insights and the data product, means final result आपको वहां से generate करना है. Okay, so that is a one example. Means first you have to do a preparing the data. For an example, कॉलेज के स्टूडेंट है तो सभी के डेटा यूज कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर लर्निंग फ्रॉम डेटा, विजुअलाइजिंग करते हैं, फिर कुछ भी आउटपुट जैसे हम लोग ने एनालिसिस किया है कि जो सब्जेक्ट कौन से टफ है, दैट इज डिपेंड ऑन द रिजल्ट. जो आपके स्टूडेंट के जितने भी रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से कौन कौन से टफ सब्जेक्ट है वो हमने एज अ इनसाइट और द डेटा प्रोडक्ट. Okay, lastly जो भी हमको जनरेट हुआ, that is a one type of insight. Okay, so we start with the preparing the data. So data that you access from a various source doesn't come in a easily packaged form or the ready for analysis. It is a quite contradictory. So जो भी डेटा आप जहाँ से भी डेटा सोर्स से आप एक्सेस कर रहे हो वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा. जैसे ही मैंने लास्ट एक लेक्चर के अंदर दिखाया था कि हम लोग ने आपके स्टूडेंट चैट, जो आपने जो भी चैट किया है उस पे मैंने एनालिसिस किया है. तो सेम थिंग, टू एक्सेस द वेरियस सोर्स ऑफ डेटा डजंट कम इजीली इन अ पैकेज फॉर्म. मुझे ऐसा डेटा पैकेज फॉर्म में नहीं मिले हैं. ओके, डायरेक्टली नहीं मिले हैं. मीन्स मैंने वहां पे वो प्रिपेयर किया है, preparing the data. Okay, so data that you access from the various source doesn't come in a easily packaged form. Means आपको easily packaged form में नहीं मिलेगा और directly ready नहीं मिलेगा for the analysis. Okay, so raw data is not only a many very substantial in a format, but you have to also transform it and make the all data sources that is a cohesive and amenable to analysis. That means cohesive means club. Okay, so जो jointly ऐसे डेटा हो गया, जो jointly हो गया, you have to do a separate. मीन्स मैंने लास्ट एग्जांपल दिखाया था कि अगर स्टूडेंट ने एड्रेस लिखूं बोला होगा तो वो एड्रेस फॉर्म में पूरा एड्रेस लिख लेगा ओके फॉर्म में, बट दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ कोहेसिव. मुझे क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा. उसकी सिटी कौन, फर्स्ट उसकी लोकेलिटी क्या है, देन सिटी, देन स्टेट, देन कंट्री, पिन कोड, ऐसे ऐसे सेपरेट करूंगा. ओके, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन.
ओके अगर किसी ने बर्थडे लिख ली दैट इज जो भी बर्थडे लिख ली तो उसको मैं अगर बर्थडे है तो उसको भी मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा कि फर्स्ट टू डिजिट है दैट इज अ डेट देन मंथ ओके उसके बाद के जो लास्ट और लास्ट टू होगा दैट इज अ ईयर तो उस तरह से मैं ट्रांसफॉर्म कर दैट इज योर रॉ डेटा को कोई ऐसी फॉर्मेट में नहीं मिलेगी कोई आपको जो फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में बट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म ओके दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही मुझे जो डेटा मुझे मिले थे एक ही सिंगल रो में मिले थे मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा दैट इज अ वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने लास्ट एग्जांपल में दिखाया था कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया है okay so transformation may be required to changing the data type and order in which the data appear even the creations of data to the entire base the information provided by the existing entries okay yes huh okay 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 ओके और कोई स्टूडेंट जो वेटिंग में ऐसा तो कुछ नहीं है ओके सो द प्रिपेयरिंग द डेटा हम लोग जो एग्जांपल हम लोग ने लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया वो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे अगर ये जस्ट एग्जांपल है ऐसे आपको लार्ज डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा So this is our data. Now यहाँ पे देखो ये जो भी डेटा है that is in a single row एक ही रो में है डेटा टाइप ही एज अ स्ट्रिंग है ओके जो मैंने डेटा कलेक्ट किया आपके चैट बॉक्स है दैट इज इन अ नाउ व्हाट यू हैव टू डू वी हैव टू ट्रांसफॉर्म मुझे सेपरेट करना पड़ेगा यहाँ पे नाम नेम ही है यहाँ पे और यहाँ पे टाइम है और आपका जो चैट है सेम थिंग यहाँ पे देखो तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा सो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट आई हैव डू दैट इज ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम मिला है ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग इट फिर मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया कि फर्स्ट रो हो गई दैट इज इन अ नेम में ऐड करूंगा सेकंड जो आएगी वो टाइम में और थर्ड को चैट में ऐसे जितने भी डेटा है उसको मैंने इस फॉर्मेट में ले लिया तो यहाँ पे देखो सेपरेट हो गया दैट इज योर नेम टाइम एंड योर चैट ओके सेम थिंग यहाँ पे देखो सब भी नेम एक रो में आ गया टाइम एक रो में आ गया अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो यहाँ पे टाइम पे भी कर सकता हूँ कौन से टाइम पे किसने क्या मैसेज किया वो भी मैं यहाँ पे एनालिसिस कर सकता हूँ ओके मीन्स यहाँ पे मुझे टाइम स्लॉट मिलेगा मैं टाइम स्लॉट वाइज भी चेक कर रहा हूँ अगर 9:30 AM से 9:30 9 और 3 मिनट पे किसने क्या आंसर दिया वो भी मैं चेक कर सकता हूँ
4 पे किसने आंसर दिया, 3 और 4 के बीच में कितने स्टूडेंट ने आंसर दिया वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। मीन्स उस हिसाब से मैं चेक कर सकता हूँ कितने स्टूडेंट उस टाइम पे एक्टिव थे इन अ लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 9 तो उस टाइम पे कितने स्टूडेंट एक्टिव थे वो सब मुझे यहाँ पे दिख सकता है। ओके, फिर मैंने सॉर्ट कर दिया, यहाँ से सॉर्टिंग कर दिया। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो दैट इज मैंने एक नेम की कॉलम बना दी, देन टाइम की और चैट की। ओके, यहाँ पे क्या था, सिंगल रो थी। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम, टाइम और चैट को ट्रांसफॉर्म किया। दैट इज वन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, so preparing a data that you access from the various data source doesn't come in a easily packaged form. Means मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप डेटा साइंस पे आप जब डेटा साइंटिस्ट की जॉब करोगे या फिर डेटा साइंस के जो भी प्रोग्राम करोगे, यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट इजीली अवेलेबल है, उसी को एक्सप्लेन। बट डेटा सेट्स डेटा इज नॉट ऑन इजीली फॉर्म, जो इजीली फॉर्म में नहीं है, हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कहीं पे भी मिसिंग वैल्यू भी आएगी, ऐसे आपको डेटाबेस भी मिलेगी जहाँ पे मिसिंग वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू पे अगर आप मिसिंग में कुछ भी नहीं एंटर किया या फिर वो मिसिंग को एज अ जीरो कंसिडर करे तो वो आपके आउटपुट के अंदर इफेक्ट करेगा रिजल्ट के अंदर। ओके, सो वो सब भी हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। सो दिस वन इज अ प्रिपेयरिंग द डेटा। सो फॉर दैट यू हैव टू डू अ ट्रांसफॉर्मेशन। द नेक्स्ट वन इज अ परफॉर्मिंग द एक्सप्लोरेटरी data analysis. Now the you know about that is a आपको data analysis करना है, then you have to the maths behind the data analysis. It relieves the engineering principle in that the result and the result are provable and the consistent. Means आपको according to the engineering principle the result are provable and the consistent होने चाहिए. Okay, the math behind the data analysis. So it is not necessary कि डेटा एनालिसिस जैसे आप लोग कोई भी चीज करते हो कि आप प्रोजेक्ट करते हो, तो आपने डिजाइन इंजीनियरिंग का जो भी प्रोजेक्ट और वो सब किया, उसके अंदर आपने क्या किया, पहले से ही आपने एक प्रोडक्ट बना लिया। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस एनालिसिस नहीं किया, पहले से ही आपने प्रोडक्ट बना दी, इसलिए आपको पता चल गया ये। बट यू हैव टू डू द एनालिसिस पार्ट, मींस जो भी आपने डोमेन है उसको एनालिसिस किया होता परफेक्टली, तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो और अच्छी तरह से बनती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही प्रोडक्ट वहां से मिलेगा, आप एनालिसिस करोगे, यू गेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जो आप डिजाइन इंजीनियरिंग में करते हो, क्या करते हो, पहले प्रोडक्ट ही ले लेते हो फिर डिजाइन इंजीनियरिंग। दिस इज नॉट अ फ्लो ऑफ अ डिजाइन इंजीनियरिंग। डिजाइन इंजीनियरिंग में क्या करना पड़ता है कि पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन से आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करिए, और उस प्रॉब्लम के फाइंड आउट के लिए क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, उसमें से कौन सा सॉल्यूशन अच्छा होगा, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओगे। So the same thing here, the exploratory of data analysis, the math behind the analysis. Okay, so results should be provable and consistent. The data science provide to access the well statistical methods and the algorithm that you help to discovering the patterns. Now the most thing जो आप analysis कर रहे हो, so first thing you have to discover the pattern. Okay, you have to discover the pattern in the data. मीन्स अगर मैंने शॉपिंग मॉल के डेटा ले लिया है, ओके, तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि फॉर एन मोबाइल शॉप के लिए, तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि पैटर्न फाइंड आउट कर रहा हूँ कि अगर कोई मोबाइल ले रहा है, सॉरी हम लोग लैपटॉप की बात कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन लैपटॉप परचेस कर रहा है तो उसके साथ वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड भी परचेज करा है। ओके, दैट इज अ वन टाइप ऑफ पैटर्न। इट इज नॉट नेसेसरी कि माउस और कीबोर्ड परचेज किया, दैट मीन्स कि वो चांसेस, दैट परसेंटेज ऑफ चांसेस को वो लैपटॉप लेगा। लेकिन अगर कोई लैपटॉप ले रहा है, ओके, तो उसके साथ वो एंटीवायरस या फिर कुछ भी उसके साथ ले रहा है, दैट इज अ वन टाइप ऑफ पैटर्न कि कितने परसेंटेज, अगर किसी ने लैपटॉप लिया तो उसके साथ एंटीवायरस कितने परचेस किए। तो मैंने एनालिसिस किया कि मेरे पास
1000 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड में से मैंने 200 पीपल को ऐसे देखा कि जो लैपटॉप ले रहा है उसके साथ एंटीवायरस भी ले रहा है। दैट इज अ वन टाइप ऑफ पैटर्न। मैंने ऐसे 300 कस्टमर को देखे जो लैपटॉप ले रहा है विथ अ वायरलेस माउस। So that is a one type of discovering the pattern from that data. Okay. So उसी तरह that is a one type of you can say that is a market analysis. Okay. That is a market basket analysis. वो एक concept है that is in a data mining के अंदर concept है that is a using a discovery the patterns in the data. तो इस तरह से आप pattern find out कर सकते हो. Okay. That is with the help of the data. अगर आपके पास डेटा होगी तभी आप डिस्कवर वो पैटर्न को फाइंड आउट। अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये लैपटॉप ले रहा है, दैट मीन्स वो एंटीवायरस लेगा ही। तो उस हिसाब से आपको एक रिजल्ट, एक पैटर्न मिलेगा, तो उस हिसाब से आप अपना बिजनेस प्लान सेट कर सकते हैं कि मैं एक ऑफर रख सकता हूँ कि देयर इज अ कॉम्बो ऑफर बिटवीन द यू कैन लैपटॉप विद एंटीवायरस, वो सब रख सकता हूँ। ओके, दैट इज अ उस तरह से आप डिस्काउंट ऑफर भी रख सकते हो। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिस्कवर द पैटर्न इन द डेटा। सो दिस इज अ परफॉर्मिंग द एक्सप्लोरेटरी ऑफ डेटा एनालिसिस मींस फर्स्ट थिंग कि प्रिपेयर कर डेटा करना होगा, उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर डिस्कवरी इज अ मेन पार्ट। ओके, और इटरेटिव प्रोसेस मींस इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पहले ही ट्रायल में आपको डिस्कवरी मिल जाएगी, पैटर्न मिल जाएगी। आपको एटलीस्ट मीन्स जितनी बार इटरेटिव प्रोसेस मीन्स मैनी टाइम्स आपको वो प्रोसेस को एनालिसिस करना ही पड़ेगा। आपको जो भी डेटा सेट मिलेगा उस पर आप एनालिसिस करते रहो तो आपको कोई ना कोई पैटर्न मिलेगी। ओके, यू गेट द नंबर ऑफ पैटर्न। So discover the patterns in a data, and it is a iterative process, and use a trial and error part of a data science. It is a part of data science art. That is a one part of a data science. Okay, and trial and error. Use a trial. हाँ, आप ट्रायल करो कि कुछ डिस्कवरी मिल रही है, हाँ उसमें एरर भी हो सकते हैं, फिर से ट्रायल करो। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। ओके, दैट इज अ वन टाइप ऑफ डिस्कवरी। क्लियर? यस और नो? ये पता चल गया। फर्स्ट डेटा, प्रिपेयरिंग द डेटा एंड एक्सप्लोरेटरी ऑफ डेटा एनालिसिस। यस और नो? प्लीज मेंशन इन अ चैट बॉक्स। Next, learning from a data. So as it is a iterative, so various statistical analysis method and apply a algorithm means ऐसे बहुत सारे statistical method है और algorithm है to detect the pattern and being a learning from a data। अगर आप कुछ भी डिस्कवरी करना चाहते हो तो आपके लिए statistical analysis method है और algorithm भी बहुत सारे हैं to detect the pattern। So being a learning from a data, discovery is a part of a data scientist. Discovery is a part of a data scientist. It is a fun part of a data science because you can ever know in advance precisely what the data will reveal to you. Means आपको discovery, that is a one part of। आपको पहले अगर आपको डेटा मिल गए तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि इस डेटा में ये है। Okay, you can't ever know in advance precisely what the data revealed to you। Means वो डेटा आपको किसके लिए वो डायरेक्टली नहीं है। Okay, so you have to do a discovery। डेटा साइंस में आपको डिस्कवरी करना पड़ेगा। It is a part of a data scientist। Okay, it is a finding and seeming the random patterns। आपको कुछ भी random pattern मिले and mean a keep in a open mind। आपको ऐसी number of pattern मिलेगी randomly। अगर आपने discovery phase को miss कर दिया, you missed the discovery phase, means loss of opportunity for both you and the people depend on it। Many of companies they are using a data scientist। Why? क्योंकि वो कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड आउट, कुछ ना कुछ डिस्कवरी के लिए रख रहे हैं
अगर वहां पे आपने डिस्कवरी मिस कर दी इन दिस फेज, डिस्कवरी फेज के अंदर आपने मिस कर दिया डिस्कवरी करना, देन देयर इज अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी. Okay, and the people who depend on you. Okay, so this is a part of a learning of data. Then the visualizing. Now the what we have to do, you have to visualize the pattern. Means seeing the pattern in the data, will able to react to those patterns. It is also being to see, okay, when the data is not a part of a pattern. Now आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पैटर्न भी मिलेगी, नंबर ऑफ डेटा दैट इज डिपेंड ऑन डेटा इज देयर. तो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कॉलेज के डेटा पे वर्क कर रहा हूँ, ओके, कॉलेज के स्टूडेंट के डेटा पे वर्क कर रहा हूँ, और मैंने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, सपोज पीडीएस. तो पीडीएस में लास्ट ईयर का रिजल्ट क्या आया था, ओके, तो मैं वो स्टूडेंट का एनालिसिस करता हूँ कि मिड सेम में कितने थे, एक्सटर्नल में कितने थे, प्रैक्टिकल में कितने थे, वो सब एनालिसिस कर रहा हूँ. दैट इज अ वन टाइप ऑफ फाइंडिंग अ पैटर्न. वो मैं पैटर्न फाइंड आउट कर रहा था. देन व्हाट द आउटलायर. आउटलायर मीन्स क्या हो गया कि अगर मैंने सिविल और वो सब के स्टूडेंट के भी डेटा है इन डेटा सेट के अंदर, तो वो पैटर्न से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू रिमूविंग दैट डेटा दैट लाइज द आउटसाइड द पैटर्न. ओके, अगर आपको सिर्फ पीडीएस पे ही वर्क करना है, पाइथन विद डेटा साइंस पे वर्क करना है, तो मुझे सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है उसी के डेटा चाहिए. आइदर आई एम टेकिंग अबाउट द सिविल, मैकेनिकल और ऑटो, उसके डेटा मुझे नहीं चाहिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, दैट डेटा इज लाइक, दैट इज नोन एज अ आउटलायर. ओके, दैट इज नोन एज अ आउटलायर्स. वो आपके जो लास्ट चैप्टर में उसमें भी एक्सप्लेन किया व्हाट इज अ आउटलायर. ओके, so other can see the masterpiece of information and you can see the masterpiece. वहां से आप विजुअलाइज कर सकते हैं. मीन्स इस तरह से डेटा हो गया. ओके, आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो जो कंप्यूटर साइंस के डेटा है वो यहाँ पे देखेंगे, और जो आउटलायर है वो इस तरह है, दैट इज अ आउटलायर. यहाँ पे जो ब्लू डॉट दिख रहा है दैट इज अ आउटलायर, और जो रेड में दिख रहा है दैट इज योर इनलायर. नाउ उस पे वर्क करना है. देन विजुअलाइजिंग द सीइंग द पैटर्न, द डेटा बीइंग एबल टू रिएक्ट टू द दोस पैटर्न, इज आल्सो बीइंग एबल टू सी द डेटा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पैटर्न. मींस हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि ये हो रहा है, और जो ये जो डेटा है उसको भी हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैटर्न. ओके, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ पैटर्न. That is in a visualizing format में आपको दिखेगा. Then lastly आपको क्या मिलेगा, ओके, जो भी आपने एनालिसिस किया उसका इनसाइट्स एंड द डेटा प्रोडक्ट. ओके, viewing a data, the process doesn't end until you have to understanding what the data means. डेटा क्या कहना चाहते हो, that is the insight. Lastly, okay, and the manipulating and the analysis the data help you perform a real world task. For an example, you see the result of an analysis and make a business decision. और lastly आप decision ले सकते हो, business decision ले सकते हो. That is a one form of a data mining. जो data mining का concept है यही है, okay, कि आपके पास बहुत सारे डेटा है, उसको माइन करो, find out some pattern, और उस पैटर्न that is known as उस पैटर्न से आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो कि इस तरह से हो सकता है. ओके, so clear about this one. That is a data science pipeline. Now understanding the role of Python in data science. अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि पाइथन का रोल क्या है डेटा साइंस में. डेटा साइंस हमें पता चल गया. ओके, अब पाइथन का रोल क्या है डेटा साइंस के अंदर. Python is a one language, that is not a data science, it is a language. लेकिन डेटा साइंस के लिए हम लोग understand the Python roles in a data science. Okay. So considering the shifting profile of data scientists, working with the multi-purpose, simple and efficient language, learning to use a Python fast
loading a data, training a model, and view the result. This is a Python role. So first हम देखेंगे considering the shifting profile of a data scientist. Okay, so the world now view the data scientist. What is data scientist? अगर हम लोग data scientist को देखेंगे, it is an adjunct to a developer or a new type of developer. There is a new type of developer. जैसे वेब डेवलपर, ऐसे एंड्रॉइड डेवलपर, ऐसे बहुत सारे. That is a data scientist is one type of a new developer. Okay. The adjacents of the applications all sort can be learned in the essence of this the change. For the application to learn, it has able to manipulate the large data and discover the new pattern in them. In addition, the application must be able to create a new database on the old data and making the inform the prediction of all sorts. Now these are the data scientist profile. Okay. Now why the Python? So many different language available to accomplish the data science task. Means there is a different languages are there to perform the data science task. Why Python? क्यों हम लोग data science के लिए use करें? Data science is a different thing to find out the discriminating and the preparing the data, then the visualizing the data, and these are the part of our data science. तो हम लोग many different way the available the data science के जो भी task है वो perform के लिए बहुत सारे languages available है. लेकिन Python represent a one single and the stop solution that you solve the complex data science problem. Python से आप single stop solution that used to solve the complex data science problem. Okay, instead of having a number of tools to perform a task, means अगर आपको data science की task करनी है तो आप नंबर ऑफ टूल्स के सपोज डेटा प्रोसेसिंग के लिए अलग लेंगे, डेटा प्रिपरेशन के अलग से टूल लेंगे, डेटा एनालिसिस के लिए अलग से, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए अलग से, ग्राफ के लिए अलग से, लास्ट में रिजल्ट के जनरेट करने के लिए अलग से. तो वो सब आप टूल्स यूज करोगे. इंस्टेड ऑफ हैविंग द नंबर ऑफ टूल्स यू कैन सिंपली यूज अ सिंगल लैंग्वेज दैट इज अ पाइथन. डेटा साइंटिस्ट के अगर जॉब डेटा साइंटिस्ट के जो टास्क है वो आप डिफरेंट टूल्स से भी कर सकते हो. दैट इज इन अवेलेबल इन अ मार्केट. बट इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आप डिफरेंट टूल्स यूज करने से बेटर कि आप डायरेक्टली पाइथन यूज कर लो. सो पाइथन टू गेट अ जॉब डन. एंड द पाइथन ऑफर द मोर देन reusable code, and an important thing, it is a functional, imperative, object oriented, and a procedural. So it's Python support the different coding style. These are the coding style. What is a C language is your? C language is your? Which type of language? Is it object oriented? Procedural. Procedural, okay. The step by step, it is a procedural language, okay. Then C++, that is object, Java, and that is object oriented, okay. And it is also functional and imperative. Now we see the functional. First is the functional. Everybody know about the functions, okay. What is a function? Function, that is a user defined function, okay. Once you create, you can call a number of time. So वहां पे आपने कोई function बनाएगा, that is a mutable data, okay. That is a data is changing one state to another, means ऐसे change. अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया, सो अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 5 को फाइंड आउट करना है, अगर फैक्टोरियल ऑफ 5, तो मैं अगर फंक्शन में यूज नहीं कर रहा तो मैं क्या करूंगा, पहले फॉर लूप यूज करूंगा और 1 into 2 into 3 into 4 into 5 उस तरह से यूज करूंगा, ओके. मीन्स कैलकुलेशन होगा और जो भी 120 आंसर आएगा वो, ओके. ये 5 के लिए किया, दैट इज अ वन टाइप ऑफ लॉजिक मैंने यूज किया, ओके. फिर मुझे नेक्स्ट 2-3 कोडिंग कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट में मुझे फैक्टोरियल ऑफ 7 का फाइंड आउट करना था, तो 1 2 3 4 अप टू 7 तक जाऊंगा. So instead of doing such thing, I just create a function, okay. एक फैक्टोरियल का फंक्शन ही बना देता हूँ. So the main advantage is to approach to have no side effect to considering. In additional, the coding style, the land itself are better than other to parallel processing because there is a no state to consider. Okay.
and the many developer prefer this coding style for the recursion and for the lambda calculation. Okay, means अगर मैंने फंक्शन बनाया है तो मैं रिकर्जन के हिसाब से भी वर्किंग करूंगा. Okay, so that is a one functional. और Python ये provide support करता है functional programming. It is also supporting the imperative. Okay, मीन्स आपने ऊपर वैल्यू कोई भी चेंज किया, इंपेरेटिव मीन्स ऊपर सपोज आपने डायरेक्ट चेंज किया तो वो नेक्स्ट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. ओके, और आप मैनिपुलेट डेटा स्ट्रक्चर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड is also support the encapsulation, polymorphism, data hiding features. Okay, but it is not a fully supported data hiding, but it support this type of, that is encapsulation, polymorphism. Then procedural means it is a step by step. Python में भी आप step by step कर सकते हो. Iteration and modularization, selections and iteration. तो ये स्टाइल भी, दिस आर द स्टाइल. आप लोग जैसे आप बोलते हो कि जावा जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंट के स्टाइल वहाँ पे. प्रोसीड्यूरल दैट इज अ सी, फंक्शनल वो सब भी पाइथन सपोर्ट करता है. ओके, देन नेक्स्ट थिंग दैट इज अबाउट द वर्किंग विद द मल्टीपर्पज एंड द सिंपल एंड एफिशिएंट लैंग्वेज. ये पाइथन सपोर्ट करता है. दैट इज अ डिफरेंट कोडिंग स्टाइल. ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा था, एक्सप्लेन द पाइथन दैट सपोर्ट द डिफरेंट कोडिंग स्टाइल. Then learning to use a Python fast. So you gain the understanding the flow of Python to perform the data science task. Okay? अभी जो लेक्चर अभी जो चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको लर्निंग विद पाइथन और डेटा साइंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो जस्ट डिस्कवरी मैचिंग हो रही है. लेकिन आपको जब ये अभी तो जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जैक्टली कब पता चलेगा जब आप उसके प्रोग्राम करोगे, डेटा साइंस के प्रोग्राम करोगे विद पाइथन. ओके, डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरिंग, डेटा फैचिंग वो सब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डेटा साइंस क्या है और कैसे होता है. अभी जस्ट जो भी स्टूडेंट जो भी अभी लेक्चर में प्रेजेंट है, जस्ट अभी नोट करके रखो. टोटली डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट हम लोग किस पे स्टडी करें वो जस्ट एनालिसिस करके रखो. हम लोग इसका प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि हाउ इट्स फास्ट, हाउ इट्स यहाँ पे देख रहे कि लर्निंग यूज ऑफ पाइथन फास्ट. आपको पाइथन क्यों फास्ट लगा वो सब लास्ट में पता चलेगा. ओके, जस्ट यहाँ पे जस्ट थियरी है कि यू कैन गेन द अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ पाइथन टू परफॉर्म अ डेटा साइंस टास्क. देन लोडिंग अ डेटा, बिफोर यू डू एनीथिंग यू नीड टू लोड सम डेटा. देन ट्रेनिंग द मॉडल मीन्स आपको जो मॉडल बनाया है उसको अल्गोरिज्म विद द बिल्ड इन अ पाइथन. मैंने अभी जो एक मॉडल बनाया कि डेटा फैच कर रहा हूँ उस पे से कितने स्टूडेंट एक्टिव, दैट इज अ वन एग्जांपल ऑफ अ मॉडल. और मैं उसको ट्रेन करूंगा कि कितने स्टूडेंट एक्टिव है. फिर उसके अंदर मैं और एडिट करूंगा किस टाइम पे कितने स्टूडेंट एक्टिव थे. ओके, फिर उससे मैं एडिट करूंगा हु इज द मोस्ट एक्टिव. ओके, और फिर वो भी मैं चेक करूंगा कि कौन से स्टूडेंट इरेग्युलर है, कौन से स्टूडेंट एब्सेंट है, कौन से स्टूडेंट इनएक्टिव है. दैट इज अ ट्रेनिंग ऑफ मॉडल. मैं उस मॉडल को ट्रेन करूंगा उस हिसाब से. दैट इज अ ट्रेनिंग ऑफ मॉडल. ओके, so this will be all about the data science and the Python. Now the introducing the Python capability and the wonder. So why Python? Okay, क्यों Python? Okay, so grasping the Python core philosophy, discovering the present and the future development goal. So grasping the Python core philosophy. Givido, that is your founder of Python. Okay. Actually, start of Python, and there is one Sunworks, that is a one project. Okay, that is the name of a project. उस project पे वो work कर रहा था, और the core concept was to create a Python quickly as possible, to create a language flexible and run on any platform and provide a significant potential for the actions. मीन्स हम लोग C और वो सब यूज कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली जो पाइथन बनाया है वो C यूजर को के लिए ही है कि C that is a platform independent.
This is a sorry, platform dependent. The Python, that is a platform independent, then it is run on any platform and provide a significant potential for the extension. Okay, and Python provide all the features and many more. Now the discovering the present and the future development goal. So the original development of a Python is a quite don't quite the match that happened to the language. एक्चुअली जो पाइथन बनाया है वो किसके लिए कि ये जो डेवलपर है उसको सी लैंग्वेज के यूजर्स जो है सी लैंग्वेज के यूजर है उसको ही टारगेट किया है. द ओरिजिनल टारगेट ऑडियंस ऑफ अ पाइथन वाज अ सी डेवलपर. उसको उसने टारगेट किया. नाउ सी डेवलपर में आप लोग ने देखा कि अगर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड मुझे लिखना होगा, फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा पहले. अगर सी में मुझे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा. यस एनीवन. सी का प्रोग्राम के अंदर मुझे अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होगा तो पहले क्या करना होगा. यस, कोई भी माइक ऑन करके बोल सकता है. हेडर फाइल. हेडर फाइल देन printf. हेडर फाइल देन प्रिंटफ. हाँ, curly bracket curly bracket. ये हेडर બધું તો फाइल પણ देन void main. हाँ, Okay, then curly bracket, then printf, then double quote, hello world and semicolon. Okay. આખો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો. Now, what the actually the Python founder वो क्या करना चाह रहे हैं. क्रिएट अ वन कट ऑफ कोड. ओके, मीन्स मैं ऐसे ही लिख दूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो वो प्रिंट हो जाएगा. मुझे हेडर फाइल नहीं ऐड करनी पड़ेगी, वॉइड में नहीं एंटर करना पड़ेगा. एंड what we can say सेमीकोलन नहीं होगा, कर्ली ब्रेसेस नहीं होगा, वो सब उसने कट ऑफ कर दिया. ओके, तो that's the Python as a second language for the developer. You need to create a one cut of code, but you couldn't quite achieve their goal using a scripting language. The original target audience for the Python was a C developer. Actually जो Python की जो हम लोग डिस्कवरी देखते हैं तो वो C लैंग्वेज के हिसाब से उसने काम किया कि जो C में जो भी ड्रॉबैक्स थे उसको उसने निकाला. तो उसको कर्ली ब्रैकेट लिखना अच्छा नहीं था तो उसने कर्ली ब्रैकेट निकाल लिया और उसकी लैंग्वेज के अंदर जैसे प्रिंट लिख दिया. देन फर्स्ट थिंग कि उसको कर्ली ब्रैकेट लिखना बहुत, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में उसको बहुत एरर आए थे तो उसने क्या किया कि वो निकाल ही दिया और उसकी जगह इंडेंटेशन रख दिया. देन सेमीकोलन को निकाल दिया. ओके, हेडर फाइल, तो हेडर फाइल के लिए जो बेसिक हेडर फाइल है उसको निकाल दिया और उसकी जगह जो डायरेक्टली रख दिया. आपको कोई हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन अगर कोई पांडास और वो सब दैट इज आउटसाइड ऑफ पाइथन तो उसकी लाइब्रेरी आप ऐड कर सकते हो. दैट इज विद द हेल्प ऑफ द इनपुट. ओके, next one, that is a performing the rapid prototyping and experimental. So anyone know about the software development life cycle कि कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं. हाँ, जस्ट एनीवन. अगर आपको किसी ने बोला कि कोई कंपनी ने बोला कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप लोग पहले क्या करोगे. प्लानिंग. ओके, फिर एनालिसिस देन रिक्वायरमेंट. ओके, सो फर्स्ट थिंग, अब जो भी डेफिनेशन आपको मिली है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. एक्चुअली जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हो किसी के पास से, कोई कंपनी से, कि मुझे कोई क्लाइंट आपको मिल गया कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाने हैं. तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने हैं तो फर्स्ट थिंग व्हाट, अच्छा कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं. ओके, देन रिक्वायरमेंट, आप उसके पास से रिक्वायरिंग गैदरिंग करोगे. ओके, फिर
रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया, फिर आप लोग क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। एनालिसिस के बाद आप ब्लूप्रिंट बनाओगे, दैट इज वन, डिजाइन बनाओगे। एनालिसिस के बाद डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के बाद आप इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे और टेस्टिंग। ओके, दैट इज अ फ्लो, वो एक फ्लो है। तो नाउ क्या होगा कि क्लाइंट ने, आप जैसे डेवलपमेंट में आ गया, क्लाइंट ने फिर से कोई चेंजेस दे दिया कि मुझे ये चाहिए। ओके, सो रिक्वायरमेंट में फिर से चेंज होगा, डिजाइन में चेंज होगा, डेवलपमेंट में चेंज होगा। सो वो आपको क्या करना है भाई, ऐसे सिंगल फ्लो नहीं करना है आपको। प्रोटोटाइपिंग मींस जो भी आया, अगर क्यों यहाँ पे भी अगर डेटा साइंस की साइंटिस्ट की जॉब कर रहे हो, देन कोई भी नया डेटा आया तो उसके हिसाब से कोई नई पैटर्न मिलेगी, नई पैटर्न के हिसाब से आप अगेन एनालिसिस करोगे और फिर प्रेजेंटिंग करोगे। ओके, सो बिल्डिंग अ डेटा पाइपलाइन, देन परफॉर्मिंग एंड रिक्वायर्ड शेपिंग मींस आपको सेव द डेटा करना पड़ेगा। मींस आप जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वो सब करते हैं वैसे ही आपको सेव करना पड़ेगा। देन एनालिसिस द डेटा, फिर आपको डिस्कवरी पैटर्न फाइंड आउट करना है। एनालिसिस से क्या करेगा, आपको कोई पैटर्न मिलेगी। और लास्टली रिजल्ट। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये फिक्स ही होगा, क्योंकि डे बाय डे आपको नए नए डेटा मिलेंगे। सो आपको प्रोटोटाइपिंग करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल्स मींस इटरेशंस, मींस अगर नया डेटा आएगा तो आप फिर से आपको पैटर्न चेंज करनी पड़ेगी, एनालिसिस फिर से करना पड़ेगा और प्रेजेंट रिजल्ट में भी चेंज आएगा। ओके, सो इट इज नॉट अ फिक्स्ड। तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्डिंग अ डेटा पाइपलाइन, फिर अगर कोई चेंजेस आएगा तो फिर से आपको डेटा पाइपलाइन चेंज करनी पड़ेगी। ओके, देन परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड शेपिंग, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। ओके, एंड स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपने रोबोट बनाया है तो उस कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है तो वहां पे डेटा स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन मींस वो कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट, अगर रोबोट के सामने मैंने एक बॉटल रखे तो बॉटल को वो ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है तो वो डेटा सेट में से वो एनालिसिस करेगा ये कि ये सब एट्रीब्यूट्स है तो क्या होना चाहिए। ओके, सो अगर कोई ऑब्स्टेकल, अगर रोबोट वर्किंग में है, अगर रोबोट वर्क कर रहा है, सामने कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये डोर है तो मैं अंदर से जा पाऊंगा, अगर वो डोर नहीं है सिर्फ वॉल है तो मुझे वहां से हट जाना। लेकिन अगर वहां पे स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, अगर वो डेटा सेट की साइज ज्यादा होगी तो वो डिफरेंट डेटा को एनालिसिस मैच करता रहेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो वहां पे स्पीड कम होगी रोबोट की। तो दैट इज इट्स जस्ट कंसीडरिंग द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, डेटा साइज की मैटर करते हैं, दैट इज अ साइज इज मैटर। फिर लोडिंग टेक्निक मींस आप फैच कैसे कर रहे हो, डेटा सेट बहुत साइज की, साइज ऑफ डेटा इज वेरी लार्ज, तो आपको लोडिंग करना पड़ेगा। कोई जैसे हम लोग को पता है कि आपका हार्ड डिस्क एंड द रैम, आपका जो भी करंट वर्किंग जो भी प्रोग्राम हो दैट इज वर्किंग इन अ रैम। ओके, अब आपके जो डेटा स्टोर हो गए वो कहाँ पे हो गया, दैट इज इन अ हार्ड डिस्क। जो दैट मीन्स जो हार्ड डिस्क से जो रैम के और जो आप डेटा फैच कर रहे हो दैट इज अ लोडिंग टेक्निक, वो भी फास्टर होनी चाहिए। ओके, बिकॉज लार्ज डेटा हो गया तो वहां पे एग्जीक्यूशन आपको फास्ट करना है। देन कोडिंग स्टाइल, देन मशीन कैपेबिलिटी और एनालिसिस, दैट इज अ कंसीडरिंग द स्पीड एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड। मीन्स आप जो भी डेटा सेट पे वर्क कर रहे हो तो वहां पे बिकॉज इट इज अ लार्ज साइज ऑफ डेटा, लार्ज साइज ऑफ डेटा के लिए डेटा सेट भी बड़ा होगा। दैट इज अ डेटा सेट, फर्स्ट थिंग दैट इज अ डेटा सेट, दैट इज अ नथिंग, इट इज अ डेटा। देन लोडिंग टेक्निक्स, वो जो डेटा सेट को आपने कोई पीसी के अंदर लोड करना है तो उसकी टेक्निक हो गया, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सर्वर हो गए, वहां से आपको डेटा फैच करना होगा, दैट इज अ लोडिंग टेक्निक। फिर कोडिंग स्टाइल भी डिपेंडेंट है। ओके, देन मशीन कैपेबिलिटी आपके हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंट है। फिर अल्गोरिज्म, आप कौन से अल्गोरिज्म, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आप एडीए पढ़ रहे हो अभी, एडीए, हाँ, तो एनालिसिस ऑफ अल्गोरिज्म अभी आप जो स्टडी कर रहे हो उसमें आपने सॉर्टिंग देखा, तो कौन सा सॉर्टिंग फास्ट वर्क कर रहा है, उसके आपके डैश कंडीशन वो सब। सो देयर इज आल्सो वन टाइप ऑफ कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, आपके जो भी आप प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ानी है, तो डेटा एनालिसिस ऑफ अल्गोरिज्म इज आल्सो मैटर कि आप कौन सा अल्गोरिज्म यूज कर रहे हो। अगर आप फास्टर अल्गोरिज्म यूज करेंगे आपको फास्टर आउटकम मिलेगा। ओके, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा।
लेकिन आप अल्गोरिज्म वो यूज करेंगे देन इट्स, तो ये सब पाइथन के अंदर सब टेक्निक्स अवेलेबल है, कौन से अल्गोरिज्म फास्टर वर्क कर रहा है वही अल्गोरिज्म वो यूज करेगा। मशीन कैपेबिलिटी दैट इज डिपेंड अपॉन आवर हार्डवेयर, कोडिंग स्टाइल दैट इज ऑलरेडी टेकन बाय द पाइथन, लोडिंग टेक्निक्स दैट इज अ नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर दैट performing the faster loading technique, and the data size that is your depend on your data size that is depend on your hard disk or server, उस पे depend है। So these are the considering the speed of execution in a Python. Okay, so we end this chapter, ये chapter हम लोग भी stop कर रहे थे और सेशन भी stop करते हैं। नेक्स्ट मैं अटेंडेंस लिंक चैट बॉक्स में ओके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा।